ਤਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਤਾਰੰਗ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਕੱਲੁ ਸੂਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ। ਨਾਲੇ ਦੇਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੌ ਇਸਨੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਸੁਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਤਬੀ ਸੀ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਸੂਰਮਾ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ। ਹੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਐ ਦੇਵਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਅੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਦੇ। ਇਹ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਦਲ। ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾ, ਕਿਧਰੀ ਠੋਕਰ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਫਰਲਾਂਗ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਨੇ ਨਿਢਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਮੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਗਤ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੂਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਭੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਲ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪੁੱਜੇ ਉਛਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਤੋ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾ। ਕਾਨਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਛੰਦ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਾਇਆ, ਮੁਝ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट जाया, जग दे कहां तत तू मैंने वरना तूनों जन्म ले रहा। ये बोल दर्ज नहीं हो सकते। कहते नहीं सजू दी वारी ओ कहने लगा, कागज संधि पुत्री तो भी त्रियना ने हार, यही मार ले जाओ यथा दिलोचन था। भाई स्त्री अगर कागज भी बनी हुई होवे ना वेख, क्योंकि नरकां च लै जांदी है। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਕਲ ਹੀ ਮੈਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਸੂਰ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਦੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਤ ਜਮ ਨੇ ਰਾਜਾਮ। ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਜੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਮਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਭਾਵ ਕਿਹਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, क्योंकि मैं वेप ले मेरे बोल कुछ नहीं।
लेकिन आपने हुक्म किया कि मैं सुना ना। चुप वे करेगा चुप, बोलन दी नहीं जा मुल्तानी सी ते जमाल हुसैन। कि जो ये कहेंगा साहित्य में वाकई को चुपी है। सदा सिद्धांत है जब लग दुनिया रहिए ना ने कहे, किस सुनिए किस कहिए, कुछ बोलना कुछ सुनना, चुप नहीं रहना, मुनी नहीं बढ़ना, खामोशी नहीं अख्तियार करना। कह नहीं जद के सारे बदल बैठ गए तो सब तो अपीर बैठता सी वो सूरदास खड़ा हो गया। कहने लगा पातशाह मैं भी आया दिंदरा पंदरो। सतगुरु कहने लगे असी बोल ही तेरे सुनने ने और तेरी उड़ीक च बैठे, तू सुना जरूर सुना। कहने लगा पातशाह मैं फिर गा के सुनावा। तो कोल एक तारा सी, उन्हें एक तारा कढ़िया कि सारंग दी धुन अलापी, यानी दिन दे दोपहर का वक्त, ये सारंग रात का वक्त है। दोपहर हो चुकी सी, सवेरे तो सतगुर ने अमृत लेले दे संत समागम तो बाद नितनेम तो बाद के सारा प्रोग्राम आरंभ होया सी, दोपहर हो गई सी। तो दोपहर का राग है सारंग, उन्हें सारंग दी धुन अलापी। कहना उहदे अलाप दे सी कोई मस्ती सी, उहदे अलाप दे सी कोई गल सी। जो उसने सारंग दी धुन अलापी, एक पंक्ति अपनी जबान तो वड्डी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, साध मन हर बेमुखन को संग। इस पंक्ति के उच्चारण कर रहे हैं समाधि लग रहे। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कह देना है दोपहर ढलन लग पई, वो अपनी समाधि सतगुरु बैठे हैं उसी तरह भी होर कहेगा तो सुनांगा। सारा मंडल रिस्माद होया बैठा, उहदे अलाप ने रिस्माद कर दिता और ओदी समाधि ने सारे दी समाधि डाल। साध मन हर बेमुखन को संग। कनन लांगरे सिंह आ गए ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਧੰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਛਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ तो नहीं है। कि जे जानते ना कि भगत का शब्द भगत की पंक्ति इस समाधि है। साहब भाई गुरदास जी कहने लगे अच्छा इस भगत की कोई पंक्ति चुराओ, फिर समाप्ति करके जावांगे, क्योंकि यदि समाधि का कोई पता नहीं ये कदों वापस आए, ये तो जुड़ गए। आप सुन के हैरान हो गए। एक कोई पंक्ति दर्ज है, एक साध मनी हर बेमुखन को सुन, सारंग राग रच, एक कोई पंक्ति है, ना आगे कोई पंक्ति है ना पीछे कोई पंक्ति। साध मनी हर बेमुखन को सुन। जिस गुरु भाई गुरदास जी ने कलम चुकी तो उन्होंने शंका खड़ा कर दिता, महाराज किसी को की पता चलेगा ये पंक्ति सूरदास रही है, किसी को की पता चलेगा इस पंक्ति दे नाम तो है नहीं, ये उपर के दिखी है। वह भी कहने लगे इस पंक्ति को बाकी असी पूरा करना है। महाराज ते शब्द खड़ा हो जाएगा। कहने लगे बाकी दियां पंक्तियां इस भगत नूं असी सरोपा देना, जिन्हों शब्द का सरोपा मिले, शब्द का कितनी वड्डी गल इस भगत को। उत्थे सतगुरु ने सिरलेख लिखवाया है उस पंक्ति दे थल्ले, सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। शब्द ते मल्ले पंजवे दा है पर सूरदास नूं कहती है, सूरदास नूं दे दिता। सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। ऊपर पंक्ति दे सी ओदी दर्ज बना दी चिक साध मनी हर दे मुकन को संग। हल्ले जड़े सतगुरु दे बोल ने वो भी मैं तुहाडे सामने रखा। हर के संग बसे हर लोक, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ये हरि दे जड़े जन के हरि नाली जुड़े हैं, कितने भी होवन बस जुड़े हैं। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्क सर बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन जो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਖੇ ਪੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੁਣੀ ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਫਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਆਨ ਦੇ ਚਾਹਤੇ ਯੂ ਕੁਸਤੀ ਤਨ ਗੋਜ਼
सूरदास मन पर बादलीनो दीनो एहो परलोक। ते बचन सारे वो अर्जन देव जी दे ने, सूरदास ते नहीं। सैर तिन ने श्याम सुंदर कज आन जो जाहत ज्यों कुसती तन जाओ। श्याम सुंदर नु छड़ के, अकाल पुरख नु छड़ के किसे होर चीज की इच्छा करने सूरदास को वास्ते इंज है जिन्हें कोरी दा ऊन जॉब पींदी है, ज्यों कुसती तन जॉब। हिंदुस्तान विच इलाज किया जाता है कोड़ी दा जौंकां दे नाल। कोड़ हो जाए ते फिर जौंक लांदे है, वो फिर गंदा खून पी जाती है। ते कोड़ी दा खून बड़ा मिठा हुंदा, बड़े स्वाद नाल पींदी है। ते कोड़ी दे खून दे जहर आउंदी है, जद रज के पी लैंदी है तड़प तड़प के मर जाती, जौंक मर जाती। श्याम सुंदर तद आन जो चाहत ज्यों गुसती तन जाओ। सूरदास ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਆਗਰੀ, ਪਰ ਕੋਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਅੰਜਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਖਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਦਾਓ ਅਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਗਲੀਨੋ ਦੀਨੋ ਇਹੋ ਪਰਲੋ। सूरदास ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ परमात्मा ने अपने हथ च ले लिखा है ते जिहड़े रिश्वत भगतां नूं सलोक मिल रहे ने, इसनों इसे लोक रिस मिल रहे, इस दुनिया ते मिल रहे कि राज ही होगी है। कहने ते शब्द चढ़ा दिता गया, कबीर का एक शब्द दर्ज करके सार निराग दा भोग रह गया, समाप्ति। बाकी दा काम सतगुरां ने कल देखा है। सारे हुक्म कर दिता चलो लंगर छकी है, हुण जो मर्यादा है उसकी पूर्वी करिए। संगतां उत्थे बैठे, जो सारे दिखे सतगुर बेदी उठे, कुछ खड़ाक होया ते सूरदास की समाधि उठान हो गई। कहंदा पातशाह आप चले हो, मेरा शब्द सुन। सतगुर कहने लगे तेरा शब्द दर्ज कर देता, तेरी एक पंक्ति दर्ज कर दी है। इस महफिल विच भाई बन्नो जी बैठे सन, तो सूरदास कहंदा ठीक है, मैनू थां मिल गई उस जहाज दे जिहड़ा तुसीं बनाउण लगे सी। पातशाह मेरी मेहनत सफल हो गई और मैनू पता चलिया कि घर वितकरियां तो परे दा कर है, दुबदा तो परे दा कर। अच्छा पातशाह थां तुसीं दे दी, बख्शिश कर दी। बड़ी लंबी चौड़ी कथा लुगोष्ठी चल रही है, भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है। महाराज हुण मेरा सिर्फ एक शब्द सरवण कर लो जिहड़ा आया। पंक्ति थी कोई दर्ज और नहीं दर्ज की सतगुरां ने, क्योंकि सारंग राग की समाप्ति हो गई सी। उत्थे भाई बन्नो जी बैठे सन, उन्होंने सूरदास का सारा शब्द नोट कर लिया। बैठी जदों उचारण करी गए शब्द इस तरह अजकल भाई बन्नो जी की गीड़े चो लेके आया। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, कहाँ पिए पे पान पे आए दिख नहीं तजद बोयंग। खर को कहाँ अर्गजा लेबन मरकट भूखन अंगे, सूरदास प्रभकारी कमरिया चढ़प न दूसर रंग। बेमुख दी संगत ना करी, सूरदास कहंदे छाड़ मन हर बेमुखन को संग, कहाँ पिए ते पाम पे आए दिख नहीं तजद बोयंग। अपनों कितना तो दूध पिलाओ दूर ते जहर ही बनता। खर को कहाँ अर्गजा लेपन मरकट भूखन अंग। बंदर से गल जिस मोतियां दी माला पहना दो तोड़ तोड़ के परे सुट देगा, खोते की चंदन दा लेप तो मिट्टी च लेटेगा। सूरदास प्रभकारी कमरिया चरत ना दूसर रंग, काले कंबल दे दूसरा रंग नहीं चढ़दा, मनमुख दे के गुरमुखताई का रंग नहीं चढ़दा। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। इन्ना के खबर इसने तार राग विच गा के सरवण कराया, ता सुन के जसमात तिच गई। सतगुरु ने अपनी तरफों ये स्रोता दिता, तारंग राजली समाधि हुई। सूरदास मुखे बाकी जो दिन में जिस मस्ती दे कटे वो भी भाई संतोष जी ने बड़े सुंदर ढंग दे नाल बोले। कबीर ने बचना दे नाल गुरु अर्जन देव जी दे बोल, फरीद के बोलना दे नाल गुरनालस के गुरु अमरदास जी महाराज दे बोल। और अनेका थावां ते शैली शब्दावली इको है, और अनेका थां के ऐसा है कि किसी पंक्तियां की पूर्ति ही मेरे पातशाह ने कर दी। रस्मी तौर के बद्दी 10वें पातशाह ने क्यों दी? क्योंकि 10 जामे तैयार कर दे रहे मनुख नो शब्द नाल जुड़ो। गुरु शब्द है, अकाल पुरख शब्द है, परमात्मा शब्द है, वो व्यक्ति नहीं वो शब्द है।